तो हम जो बीसीआर की क्लास आज राइटिंग सेक्शन में कवर करने वाले हैं उस पे एक तो हम इस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे कि फॉर्मेट्स as well as presentation, how we can improve upon these two things. How do we add content to anything in writing? How do we fetch better marks? And what does an examiner look into while evaluating your paper? Of course, formats and presentation are very important, but equally important is the content that you add. अगर आपका फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन अच्छा लेकिन कंटेंट बड़ा इररेलेवेंट है तो सीधा सीधा एग्जामिनर आपको उतने मार्क्स नहीं देता जितने आप कंटेंट की वजह से ऐड ऑन कर सकते हैं. तो योर मेन वर्क शुड बी ऑन formats and presentation as well as the content that you are going to add, and it is not very difficult to add the content. Let us see how it goes. We are starting with chapter 5, note making. We have to cover 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. These chapters are in writing section. So I'm just starting with note making. नाउ नोट मेकिंग होता क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, ये सारा कुछ थ्योरेटिकल है, बट हमें इस पे किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि नोट मेकिंग है क्या, ताकि हमें ये पता चले कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए. नोट मेकिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स के अराउंड आता है. राइटिंग सेक्शन में ये कंपलसरी सेक्शन में भी आ सकता है, मतलब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 में भी आ सकता है और ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी आ सकता है. तो नोट मेकिंग एक ऐसी चीज़ है और राइटिंग सेक्शन एक ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप छोड़ के स्किप करके उसका फॉर्मेट ना देख के मत जाना. राइटिंग सेक्शन के अंदर आउट ऑफ 40 मार्क्स ऑफ पीसीआर क्लोज टू 20 to 25 मार्क्स का पेपर राइटिंग सेक्शन से ही आता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट while attempting the BCR paper, your main or major portion of your exam is from the writing section. So 20 to 25 marks roughly out of 40, which is a huge chunk of marks, comes from writing section. So right now we are concentrating on note making. Note making are of two types, linear and non-linear. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर हमेशा पूछा जाता है, लेकिन आपको नॉन लीनियर का थोड़ा सा एक मीनिंग समझना पड़ेगा just to differentiate between the two. And also, in case he asks you in the worst case scenario any non-linear form of note making, then you should not fumble and you should not think कि ये तो हमने कभी किया नहीं है, इसके बारे में तो हम जानते नहीं. तो just to cover that risk, we will understand what is non-linear note making. Non-linear का मतलब है एक लाइन में ना चलते हुए, लीनियर का मतलब है एक लाइन में सब कुछ चल रहा है. नॉन लीनियर पहले देखते हैं. जैसे अगर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये एक एग्जांपल है नॉन लीनियर का, जिसके अंदर सबसे पहले उसने बोला माइंड मैपिंग. दिस इज द टेक्निक कॉल्ड माइंड मैपिंग, वेयर जस्ट by looking at the glance of a picture you are able to understand that this is talking about health. There are 4 things to it: diet, sleep, stress, exercise. So like this, your mind is mapped to the 3 or the 2D sort of structure that is created. This is mind mapping. This is non-linear. Everything does not work in a line in this case. Next is tabular form or table. This is non-linear. Whenever you have to differentiate between two things, then a table is often used. The table or tabular form of non-linear note making comes when you have to differentiate between two things. Flow chart is when after completion of the first process, you have to move to the second process, third process, like this. This is a flow chart sort of a thing. So this is also non-linear. It does not work just in a line. क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक लाइन में चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन there are several things to a flow chart as well. Start, stop, decision table, ये सारी चीजें non-linear में आ जाती हैं. ट्री डायग्राम के अंदर जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की या कुछ ऐसी चीज एक्सप्लेन करनी होती है, तो जब आप इसको इन्वर्ट करते हैं या इसको बिल्कुल अपसाइड डाउन टर्न करते हैं, तो ये ट्री रिजेंबल करता है, इसलिए हम इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं. तो ये सारे नॉन लीनियर के एग्जांपल्स हैं. अभी तक
ICAI ने कभी भी नॉन लीनियर नोट मेकिंग कभी भी क्वेश्चन में पूछी नहीं है. But we have to prepare ourselves in such a way that if he just gives you something randomly, you should not say that we have not done this or we are leaving this question just because we don't understand non-linear note making. But let us concentrate on the main thing, which is linear note making. Everything goes in a line. So this is something that we need to understand. Non-linear के ऊपर don't spend much time. Non-linear में सिर्फ आपको एक मीनिंग पता होना चाहिए कि अच्छा माइंड मैपिंग है तो कैसे होता है, टेबल है तो कैसे होता है, just that much. So that if we simply ask you to differentiate between two things using non-linear, you should be able to draw a table. That's it. So just for covering that, I just told you that what exactly is non-linear and what are the various forms. Let us come back to linear. Comparatively simpler है ये, but इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो let us see what it is. फॉर्मेट इस तरीके का होता है. सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा. लेट मी जस्ट शो यू वन ऑफ द questions from RTP. This is the latest RTP. So chapter wise I'll start discussing RTPs as well. क्वेश्चन जैसे उसने दिया हुआ है कि इस पैसेज को या पैसेजेस को पढ़ो. ये जैसे पैसेज उसने आपको एक दिया हुआ है यहाँ तक का, दूसरा पैसेज भी आपको दिया हुआ है. तो उसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ही इज आस्किंग दैट मेक नोट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एब्रीवेशंस वेयरएवर नेसेसरी, एंड एक सुटेबल टाइटल और समरी देनी है. तो इट्स अ कंप्लीट 5 मार्क्स क्वेश्चन. ये अलग अलग चीजों में नहीं होगा. इसको जैसे ही हम एक बार पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, विल बी सीइंग दैट हाउ एग्जैक्टली शुड बी द टाइटल, हाउ एग्जैक्टली शुड इट बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट कंसंट्रेट ऑन द format of note making. First thing is heading or title. So whenever you have been given this question, first of all read through the entire passage and उसका एक टाइटल ढूंढने की कोशिश करो कि which is the most suitable title for that passage. Title should be something crispy, it should be short, it should be meaningful and relevant. Second thing is subheading. यहाँ पे भी आपको सब हेडिंग और फिर सब पॉइंट, फिर सब पॉइंट ऐसे दिख रहा है. सब हेडिंग का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज टॉकिंग अबाउट अ स्कूल, द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट अ स्कूल एंड फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द बिल्डिंग. सो द बिल्डिंग विल बी द फर्स्ट हेडिंग. बिल्डिंग के अंदर कैसी बिल्डिंग है, क्या है, वो उसके सब पॉइंट्स हो जाएंगे. जैसे कि आप कभी भी कोई बुक पढ़ते हैं, कोई भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो हेडिंग क्या है 1, उसका सब हेडिंग या सब पॉइंट क्या है 1A, 1B, 1C. जैसे ही सेकंड हेडिंग शुरू होगा तो ये 1C की जगह 1D नहीं हो जाएगा, ये सेकंड A बन जाएगा, सेकंड B बन जाएगा. ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे उसके सब पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज टाइटल अबाउट अ स्कूल and the first thing is about a building, तो building will be your sub point या सब heading, and जो इसका सब point होगा वो होगा कि building is rectangular, building comprises of rooms, building has laboratories, playgrounds, something like this. Now if you want to describe which sort of labs are there, it will be a sub point. That means इसी का first point, इसी का second point. जैसे आप बताएंगे कि साइंस लैब भी है, उसमें कंप्यूटर लैब भी है, तो इसको हम बोलते हैं सब पॉइंट. हेडिंग हो गया आपका टाइटल, ये हो गया उसके सब हेडिंग, बिल्डिंग इज सब हेडिंग, उसका सब पॉइंट हो गया और फिर उसका सब पॉइंट हो गया. जैसे ही ये बिल्डिंग के बारे में खत्म करेगा and he is talking about the sort of people over there, so like you are explaining the teachers in a school, so it will be a second point. Then you will tell that how many teachers are there, this will be the sub point. फिर आगे सब पॉइंट कि कंप्यूटर के कितने टीचर्स हैं, लेट अस से आर्ट्स के कितने टीचर्स हैं. तो सबसे पहले आपको पूरा पैराग्राफ या पैसेज पढ़ के उसका एक सूटेबल हेडिंग बनाना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइटल या हेडिंग. फिर उसमें से मेन पॉइंट्स को क्लासिफाई करना है. ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से होगा कि every subheading should be a different subheading. It should not so happen that first subheading is also talking about the building and the second subheading is also talking about the building. It will not make any sense कि हम पहला subheading building का ले रहे हैं, फिर दूसरा subheading भी सेम ही building का ले रहे हैं. तो जो building के बारे में बताना है वो subheading में और इन सब points में बता देना है.
जो टीचर्स के बारे में बताना है वो बिल्डिंग से अलग सब हेडिंग बनाना है. सो इस तरीके से यू विल हैव टू प्रिपेयर सेवरल सब हेडिंग्स. एंड सम पीपल आस्क दैट कितने सब हेडिंग होने चाहिए या कितने सब पॉइंट्स होने चाहिए. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. इट इज नथिंग फिक्स्ड कि आपको कम से कम 5 बना के आने हैं या कम बना के आने हैं. तो ये सारी चीज आप पे डिपेंडेंट है कि उस टाइम पे आप कितनी सब हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन इररेलेवेंट तरीके से मत क्रिएट करना. ऐसा नहीं है कि उसके बनते थे 2 पॉइंट और आप खींच खींच के उसको 5 पॉइंट्स में कवर करके आ रहे हैं. इट शुड मेक सेंस. इट शुड बी रेलेवेंट. ओनली देन यू शुड क्रिएट अ सब हेडिंग. सो सबसे पहली चीज क्या थी? टाइटल. फिर क्या है? सब हेडिंग. और सब हेडिंग के अंदर क्या थे? सब पॉइंट्स एंड सब सब पॉइंट्स. बस इतना याद रखना है. उसके बाद यहां पे हमारा काम खत्म नहीं होता. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जितने भी आपने सब हेडिंग बनाने हैं उसके बाद एक की लिखना है जिसके अंदर एब्रीवेशंस यूज्ड एंड सिंबल्स यूज्ड के बारे में बताना है. अब ये सिंबल्स और एब्रीवेशंस क्या होती हैं ये हम जरा चेक करते हैं. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सिंबल्स एंड abbreviations can be used is something that is given here already. So we'll just quickly go through. The symbols can be like this. जैसे increase का, decrease का, therefore का, because का, ये सारे symbols हैं. Acronyms जैसे कि हम abbreviations जिसको बोलते हैं वो एक्रोनिम्स जो ऑलरेडी सभी को पता है. जैसे एचआर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आपको वहां पे सब हेडिंग में या सब पॉइंट के अंदर एचआर को पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं लिखना है. एचआर लिख दिया तो सफिशिएंट है. लेकिन की के अंदर बताना है. की के अंदर जरूर लिखना है कि एचआर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. हो सकता है वो एचआर वर्ड अपने सब हेडिंग में 2 बार अलग अलग सब हेडिंग्स में यूज किया हो. So it will logically make sense that you're giving a key and you're using the acronym or the abbreviations of those words. Similarly, इस चीज को करने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल ऑफन फॉरगेट इज they have to provide a summary also. Summary should be somewhere close to 1/3 of the original text. जो summary होगी 1/4 rather 1/4 मतलब 25% होना चाहिए. अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. आपको एक पैसेज आया. पैसेज आपने पढ़ा. उसके बाद आपने ये देखा कि 2 तरह के ट्विन्स हैं. फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं. तो जो भी आपने फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में लिखना है वो यहाँ पे लिखना है. आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में लिखना है यहाँ पे लिखना है. इसका मतलब ये आपका सब हेडिंग हो गया और आपका हेडिंग क्या हुआ? ट्विन्स, विच इज द टाइटल. टाइटल हो गया ट्विन्स. Fraternal twins will be your subheading. Sub point will be developed from 2 separate tags. ये जो भी उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. की के अंदर आप कुछ एब्रीवेशंस खुद से बना सकते हैं. जैसे DVLP इज डेवलप. यहाँ पे पढ़ के हम एक तरीके से यू कुड गेस दैट दिस इज डेवलप. ये फर्टिलाइजेशन को उसने पूरा नहीं लिखा. फिजिकल को उसने PHY डॉट लिख दिया. इसी के लिए उसने की या ये नोट्स बनाने के लिए बोला. तो ये चीज आपको बनानी है. और एक चीज जो इसने यहां पे मिस कर दी है बट वेरी इंपॉर्टेंट, समरी. समरी लिख के हेडिंग लिखना है समरी. और आपको 25% विच मीन्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट आपको समरी में देना है. तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, अगर मैं इस फॉर्मेट को डिस्कस करूं तो कैसे होगा? सबसे पहले आएगा टाइटल. फिर आएगा सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2. ये 3 4 5 भी हो सकते हैं. मैं इसको और बढ़ा के नहीं लिख रहा. उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सब पॉइंट्स. और उन पॉइंट्स के भी अगर आगे कोई पॉइंट्स होंगे जैसे 1B का 1, 1B का 2, ऐसा कुछ, तो उनको हम सब सब पॉइंट्स बोलते हैं. ये जितने भी आपके सब हेडिंग्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद आपने क्या देना है? की, जिसके अंदर एब्रीवेशंस यूज होंगी. और एंड में टाइट ऐसे हेडिंग लिखना है आपने समरी. ये नहीं कि सिर्फ समरी लिख दी. ये वर्ड समरी लिख के इस तरीके से फिर समरी लिखनी है 25%. ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है. अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या चेक करेगा वो आप देखिए. आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए. समरी 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए समरी के अंदर. की और एब्रीवेशंस बिल्कुल अननेसेसरी नहीं डाल देनी. जो थोड़ी सी रेलेवेंट है, पैसेज से रिलेटेड है, उन्हीं को की में डालिए, एब्रीवेशंस को डालिए.
जो टाइटल के साथ मैचिंग हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और सब पॉइंट्स हैं वो थोड़े रेलेवेंट होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो एग्जामिनर देखेगा, टाइटल देखेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखेगा कि आपके जो सब हेडिंग्स हैं वो रेलेवेंट हैं, और उनके अंदर जो सब पॉइंट्स आपने लिखे हैं क्या वो रेलेवेंट है। की की तरफ ध्यान कम जाएगा, इसलिए की को आपने बनाना है, रेलेवेंट बनाना है, लेकिन इसी के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर देना। और जो समरी है उसके ऊपर सबसे कम, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कई लोग क्या करते हैं, ये 3 पॉइंट्स कर देते हैं, ये चौथा भूल जाते हैं, कहते हैं वहां पे लिखा नहीं हुआ था समरी लिखने के लिए। इट इज ऑब्वियस कि आपने समरी लिखनी है। अगर आपने यहां तक तो बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन समरी नहीं लिखी, तो वो 5 में से मार्क्स देने की जगह उसी टाइम पे वो 5 - 2 में से मार्क्स देने शुरू कर देगा कि 3 में से इसको 1.5 देना है। भले ही टोटल में आपको 5 में से मिल रहे हैं, क्योंकि वो समरी देख रहे, कहते हैं इसने तो 3 नंबर का अटेम्प्ट किए, 2 मार्क्स की तो समरी थी। तो आप ये सोच के चलिए कि आपको कहीं पे भी बीसीआर के पेपर में फॉर्मेट्स के ऊपर वहां पे टाइम नहीं लगाना है, वहां पे ये समझने की कोशिश नहीं करनी है कि इसका क्या फॉर्मेट था, कैसे लिखना है। ये फॉर्मेट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, otherwise you will end up spending a lot of time on just trying to find out what was the exact format. So formats you should not be compromising on. Formats should be clear beforehand. Now let us quickly discuss one of the questions that has cropped up in the revision test papers, RTPs. अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ है, हम एक एक वर्ड एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट एक थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये पैसेज नंबर 2 इसने दिया हुआ है, ये नोट मेकिंग का ही है। उसने बोला भारत इज ए कॉन्टिजियस लैंड, इसमें कुछ सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ 1947 एक इंडिया की हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया है। फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता रहा है। उसने बताया कि इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1947, हिज रोल एज होम मिनिस्टर वाज देयर। एज द आर्किटेक्ट ऑफ एक भारत, आयरन मैन अंडरस्टैंड्स द ग्राउंड रियलिटीज। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि कैसे इसने आपको एक समरी और किस तरीके से इसने नोट मेकिंग करी होगी रिवीजन टेस्ट पेपर्स में। रिवीजन टेस्ट पेपर जो लेटेस्ट है उसको करके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिवीजन टेस्ट पेपर से रिलेटेड चीजें कई बार वो पूछ लेता है। आई एम नॉट सेइंग दिस पैसेज विल डायरेक्टली कम लाइक दिस, बट समवेयर क्लोज टू दिस कैन कम, वेयर सच थिंग्स मे क्रॉप अप। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वल्लभ भाई पटेल का ही डालेगा, कुछ भी ऐसा डाल सकता है। उसने बोला कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब है, द डे इज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन बट एंगेजेस विद हिज लेगेसी। तो ये सारी चीज यहाँ तक बिना पूरा पैसेज पढ़े, मैंने आपको सिर्फ सिंपली ये बताना कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना था। मैं वर्ड बाय वर्ड इसलिए नहीं पढ़ रहा, और मैं सीधा आता हूँ इसके सजेस्टेड सॉल्यूशन पे कि एज एन एग्जामिनर व्हाट इज ही गोइंग टू चेक, so that you should be aware that whenever you're writing certain things, what are the various things that you should keep in mind. अब देखिए, यहां से हमें जितने भी हिंट्स हमने 2 4 5 देखे, वहां से हमें पता चल रहा था कि इसका हेडिंग क्या होना चाहिए, सरदार पटेल। इसे बोला भारत इज अ कॉमन सिविलाइजेशन, प्री इंडिपेंडेंस हैड, आई एम नॉट श्योर क्या इसने वर्ड लिखा है, बट इसने आगे जाके की में एक्सप्लेन किया होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ 1947 क्रूशियल है। अब देखिए इसने जो हेडिंग सब हेडिंग्स लिखी है, 7 तक सब हेडिंग्स बना दी है उसने, but it was not essential, it is not always essential that you have to do this much. देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में उसने 5 बनाए हैं, तो समवेयर रेलेवेंट होने चाहिए। कई बार 3 से ही काम चल जाता है, 5 से काम चल जाता है। अब देखिए की में उसने ये लिखा टेरिटरीज, जो हम वर्ड नहीं पढ़ पा रहे थे, तो की में इसने लिखा टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स। ये की बनानी जरूरी है। ये देखिए इसने तो बहुत लंबी की बनाई है, बट मैं ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी की में 5 से 7 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। लंबी तो आप बना लीजिए, आपने की सिर्फ 2 वर्ड्स के लिए बनाई है, एक वर्ड के लिए बनाई है, तो मत ही बनाते ना, उसको पूरा लिख लेते। तो इट इज रिक्वायर्ड दैट एटलीस्ट यू शुड कीप 5 to 7 और मोर वर्ड्स इन द की, दैट इज एसेंशियल। इसने तो बहुत लंबी की बनाई है। अब इसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है, समरी। देखिए उसने समरी दी हुई है, समरी के अंदर उसने बहुत सिंपल सी चीजें जो उसने हेडिंग्स यूज किए थे, इनको अपने वर्ड्स में लिखना है। कई बार हम कॉपी पेस्ट कराते हैं, ये नहीं करना है। अब उसने देखो क्या बताया, मेजर रोल यूनिफिकेशन, प्रिंसली स्टेट्स, ही वॉज बैरिस्टर बाय प्रोफेशन,
आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड इंडिया, ये सारे वर्ड्स हमने कीवर्ड्स में पढ़े थे। टू एंड द कॉलोनियल, उनका कॉन्सेप्ट था एक भारत, सस्टेनेबल लाइंस, उनका बर्थडे कब होता है, ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें हमने वहाँ पे कीवर्ड्स में देखी थी। तो ये नोट मेकिंग आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए, और ध्यान रखना लीनियर नोट मेकिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आपने नॉन लीनियर को इग्नोर करके नहीं जाना कि इसके ऊपर तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। ICAI इज ऑलवेज and always unpredictable. They can ask you questions on non-linear as well. So you should be aware that what are the different forms of non-linear, what to do in which one. बट इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसको सिर्फ आपने 5 मिनट देखना है कि कौन कौन से नॉन लीनियर फॉर्म्स होते हैं। मेन आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। करना क्या है आपने, ICAI का जो मॉड्यूल है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हैं उनको प्रॉपरली पढ़ना है, एक एक वर्ड को पढ़ना है और देखना है कि उन्होंने उसका सॉल्यूशन कैसे दिया है। अभी जैसे मैंने आपको एक लेटेस्ट आरटीपी दिखाया, उसी तरीके से पिछले आरटीपीज को उठाइए और देखिए कि उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे और उनके हिसाब से, बिकॉज सी दिस एग्जामिनेशन विल बी इवेल्युएटेड बाय समवन who may not be from the English background. So BCR का पेपर can go to even a chartered accountant for evaluation. It can go to any other examiner who's a professor of English maybe. तो हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है BCR के पेपर के अंदर, हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए, किसी भी राइटिंग सेक्शन में ठीक होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, प्लस इंपॉर्टेंट है सिंपल लैंग्वेज यूज करो। बहुत ज्यादा फ्लारी लैंग्वेज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स को बिना वजह डालने की कोशिश मत करो। कीप इट सिंपल, कीप इट क्रिस्प एंड डू नॉट थिंक दैट यू आर राइटिंग अ लिटरेरी वर्क. This is business English that he's expecting you to write. It should be simple, it should be relevant, presentation should be good, the format should be appropriate. So these are the various things that you need to keep in mind while attempting the paper. First of all, let me ask everyone if you are clear on the format and the way we have discussed one of the questions. Would you be able to answer? If you have any specific questions, you can either put it in the chat or you can speak up your question and I'll try to answer that in the best possible manner. This was the first thing that we discussed, and also we discussed one of the questions from RTP, the latest RTP. So anyone who faces any issue in note making, any sort of question, please ask. Okay, at least let me know if you don't have any questions. Anyone? Or at least let me know if it is clear. You can type or let me know. No doubt. No doubt. Okay. Chapter number 6 is talking about introduction to the basics of writing. Now, this chapter, as such, I will say, does not, from examination point of view, it does not contain any question, because he just tells you कि आपको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है while writing your things. आप किसी भी चीज के ऊपर लिख रहे हैं तो उसका टॉपिक ध्यान में रखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सारे रेलेवेंट और इररेलेवेंट पॉइंट्स को एक ही जगह लिखिए, फिर उनमें से छांटिए, फिर आप अपना ऑर्गेनाइज करिए कंटेंट को जो आपने लिखना है, लिखिए, रिवाइज करिए, प्रूफ रीड करिए और इसको पब्लिश करिए। ये सारी चीजें कहीं पे भी वो क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही डज नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट. But yes, there are 4 types of writing which he can ask you anytime. So just in this whole chapter, just concentrate on this question. What are the various styles of writing? Again, I'm saying these 4 styles of writing he has not asked till yet. But अगर उसने कहीं पे 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो ये बड़ी सिंपल चीजें हैं, इनको अगर आप 5 मिनट लगा के भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने यहाँ पे आरटीपी के अंदर भी चैप्टर नंबर 6 को गायब किया हुआ है। ये देखिए, ये 5th चैप्टर था,
जिसके अंदर हमने नोट मेकिंग किया। सीधा क्वेश्चन 7th चैप्टर से आ रहा है, 6th चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा। तो इसलिए इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, सिर्फ 4 तरह की कौन सी राइटिंग है सिर्फ उनको ध्यान में रख के जाना है, दैट्स इट। मैं 1 सेकंड में आपको ये बता दूंगा ताकि आपको बाद में इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। सबसे पहले है एक्सपोजिटरी। एक्सपोज करना किसी चीज को, एक्सपोज का मतलब है आप सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। आप अगर ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं तो आपने ये नहीं बोलना कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आपने अपना ओपिनियन, इमोशन, ये सब कहीं पे नहीं लिखना है, वो है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब है कोई चीज है उसको एक्सपोज कर रहे हैं बस। दूसरा है परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव। जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, किसी को परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तब आप परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव चीजें लिखते हैं। स्पीचेस, एडिटोरियल्स, ये सारी चीजें। सिर्फ इतना समझना है आपने। पहला कौन सा था? पहला था एक्सपोजिटरी, सेकंड था परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स आ गए, परसुएड करना है। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर उसने बोला कि एक्सपोजिटरी में आप इम्पार्शियल होते हैं। आप ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ ताजमहल कैसा है, किसने बनाया, कब बनाया, ये सब लिख रहे हैं। ये सिर्फ बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है, राइटर के साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या उसका कोई पर्सनलाइज्ड अकाउंट है किसी चीज का। पर्सनलाइज्ड अकाउंट का मतलब कि वो कहीं पे गया और उसको कैसा फील हुआ। आप एक लेट अस से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं तो वो एक डिस्क्रिप्टिव की जगह वहां पे, सॉरी, वहां पे एक एक्सपोजिटरी की जगह डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ राइटिंग आ जाएगा। क्योंकि वही जंगल, वही पेड़, सभी को पता है हरे रंग के पेड़ होते हैं, किस तरह का जंगल होगा, कैसे जानवर होंगे, लेकिन आपको कैसा फील हुआ, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका एक पर्सनलाइज्ड अकाउंट है किसी चीज का, देन यू आर यूजिंग डिस्क्रिप्टिव। नाउ इज द फोर्थ वन, नैरेटिव। जब आप किसी को नरेशन देते हैं, कोई स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स हैं उसमें, डिस्क्रिप्शन है, डायलॉग है, प्लॉट है, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करी जाती है किसी फिल्म के लिए। फिल्म ऐसी नहीं बन जाती, डायरेक्टर को पहले से पता होता है कि ये डायलॉग इसने बोलना है, तो वो डायलॉग लिखने का काम किसका है? स्क्रिप्ट राइटर का। वहां पे नैरेटिव आ जाता है। शाम के टाइम पता चले डायलॉग हो रहा है कि ये शाम का समय है और पीछे से वो सनराइज हो रहा है, तो दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन। सो दैट इज व्हाई नैरेटिव means you are going by narration. It's the sort of a storytelling. Sometimes if you read through any of the novels or stories, then he creates a whole description, he creates a thorough narrative of the whole place that convinces the reader. So these are the 4 types of writing styles. So you just have to do only this much from this chapter, nothing more to do. And as you have already seen in the RTPs, he's not asking you any question from this. So you can little ignore this chapter. But yes, नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना। इसके अंदर लीनियर के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन नॉन लीनियर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, कैसे लिखा जाता है। ये सिर्फ हम अपने रिस्क को कवर करने के लिए करके जाएंगे, लेकिन ये तो आएगा ही आएगा, तो लीनियर को आप छोड़ के नहीं जाएंगे। चैप्टर 6 में जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंदर सिर्फ 4 फॉर्म्स ऑफ राइटिंग क्या क्या है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको भी चाहे छोड़ सकते हैं। ऑल राइट, सो चैप्टर नंबर 7 इज प्रेसी राइटिंग, इसको प्रिसाइज राइटिंग भी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपल वे टू राइट एनीथिंग, प्रेसी राइटिंग। इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है एज कंपेयर टू नोट मेकिंग। नोट मेकिंग is comparatively something which people are afraid of. You should spend more time on note making. Precise writing या pressy writing is comparatively simple. So what are the various things that you need to keep in mind whenever uh, let me just share with you one of the examples and then we'll go to RTPs as well. He will give you a passage, यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे उसने passage दे दिया, without a heading देगा वो passage को। सबसे पहली चीज आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, इसका एक सूटेबल हेडिंग होना चाहिए। दूसरी चीज, एक तो इसका टाइटल या हेडिंग होगा।
ये बहुत सूटेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने प्रेसी राइटिंग को ओरिजिनल टेक्स्ट से 1/3 लेंथ में लिखना है, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ आइडियाज, द सीक्वेंस should be same, and no personal remarks, no personal opinions to be expressed, even if you don't agree with the original text। ओरिजिनल टेक्स्ट से आप बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, फिर भी आप सेम फ्लो में, सेम सीक्वेंस में, सेम आइडिया को प्रेजेंट करेंगे। अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे, ये नहीं लिखेंगे कि द राइटर सेज दिस बट आई डिफर फ्रॉम हिम। You are not supposed to give any personal opinions in pressy writing. You don't have that much leverage. तो जब आप लिखेंगे, एक सुटेबल टाइटल लिखिए, 1/3 में इसको कंप्लीट करिए, और सेम तरीके से, अब जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पे कहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ था कि इंडिया है ट्रेड डेफिसिट और फिर ये डेफिसिट इतना है। यहीं पे उसने सिंपली देखा, उसने सबसे पहले पॉइंट इसी को उठाया। अब एंड में जाके एक्सपोर्ट्स, डाइवर्सिफाइंग मार्केट्स वाला पार्ट था, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड बास्केट। तो अगर आप देखें तो सेम सीक्वेंस में चल रहा है वो बंदा। तो ये प्रेसी राइटिंग बहुत सिंपल तरीके से किया गया है, और प्रेसी राइटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। Now let us see what exactly is he talking about here. This is the solution. So I'll just go back to the question once. ये रहा प्रेसी राइटिंग। इसने 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, हम थर्ड उठा रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और इसने बताया कि कॉमन कॉज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज जिससे पोल्यूशन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय पुटिंग टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, प्लैनेट लाइक अ ब्लैंकेट बन जाता है, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। ओजोन डिप्लीशन अकर्स व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs जिसको बोलते हैं, हेलोन्स, ये गैसेस होती हैं, ये रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में। इट इज़ हार्मफुल टू, सॉरी, डिप्लीशन जो है वो हार्मफुल है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। ये हेलोन्स और CFCs केमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स, रिड्यूसिंग ओजोन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ये सब दिया हुआ है। सो सिंपली इतना तो हमें समझ में आ गया कि समवेयर ही इज टॉकिंग अबाउट ओजोन डिप्लीशन। सो लेट अस सी व्हाट ही हैज टू टेल हियर, what is he doing for the pressy writing for this question. So let me go back to the solution quickly. See, उसने बताया मेजर फैक्टर्स फॉर ओजोन डिप्लीशन। ग्लोबल वार्मिंग वाला पहला पॉइंट था, वैसे ही कैसे हो रहा है, टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड एंड टेम्परेचर फील्स फेल्ट लाइक हीट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोन्स आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, जिनसे अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब आ रहा है। तो ये आपकी प्रिसाइज राइटिंग है, जिसके अंदर आपका टाइटल बहुत सुटेबल होना चाहिए, 1/3 में ये कंप्लीट होना चाहिए। और 2 पॉइंट्स एडिशनली मैंने बताए। पहला पॉइंट था कि आपको सेम सीक्वेंस और फ्लो में, और सेकंड पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको प्रिसाइज राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। So right now I'm not asking you to read through all the words one by one, but understand what exactly was supposed to be done. In general, since you have done precise writing, and since you have just understood how is the format of a precise writing and what are the various things that you need to keep in mind, anything that comes to you as a question right now in your mind, kindly ask about precise writing, or even note making if you have not asked any question till yet. Anything that is in your mind regarding note making or precise writing, kindly shoot up your question. Are we all good with the format and the way it has to be done? Yes, sir. All right. And one important thing, don't ignore the revision test papers of the latest attempt. They are very important. तो उनको करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्मेट है, लेकिन इसमें एक या दो चीज़ें ध्यान में आपने रखनी है। कई बार तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर बता देता है कि आर्टिकल ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कई बार वो बोल देता है नाउ अ डेज द यंगस्टर्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूज ऑफ दिस राइट अ सुटेबल आर्टिकल। अब आपको यहाँ से टाइटल नहीं दिया उसने, तो टाइटल आपको बनाना पड़ेगा। तो आर्टिकल राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेडिंग या टाइटल, जो कि एक बहुत ज्यादा सूटेबल हेडिंग या टाइटल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल इन कंफॉर्मिटी विद व्हाट इज बीइंग आस्क्ड होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बाय। बाय लाइन का मतलब है बाय किसने ये आर्टिकल लिखा है, ऐसे करके। ये आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये एक तरीके से आर्टिकल एक न्यूज़पेपर के लिए जैसे लिखा जाता है उस तरीके से इसने क्वेश्चन बनाया होगा। कई बार हम ये सोचते हैं हेडिंग लिख दिया हमने, अंदर भी सारा कुछ लिख दिया तो काम चल गया, लेकिन इस चीज को नहीं भूलना कि बाय लाइन लिखना जरूरी है आर्टिकल के अंदर। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सो ये हमारा हो गया कि अंदर हमने क्या लिखना है, बॉडी के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। वैसे फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके करने के लिए बोलूँगा। एक तो आपका हेडिंग या टाइटल सुटेबल होना चाहिए, और अगर आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी है तो बाकी की चीज़ें वो बॉडी और कंक्लूजन की तरफ इतना ध्यान नहीं देता। तो आपका जो मेन स्ट्रेस होना चाहिए, जैसे अगर कोई भी टॉपिक आ गया आर्टिकल का और 5 मार्क्स का है, तो मैंने क्या सोचना है कि अगर मेरे को रफली 30 सेकेंड सोचने में लग रहे हैं एक टाइटल, तो आई हैव टू मेक दिस टाइटल द मोस्ट लाइक रेलेवेंट वन। कई बार क्या होता है कोई चीज पढ़ के हमें उसका टाइटल या हेडिंग समझ में नहीं आ रहा होता, तो फटाफट से अपना आर्टिकल तो लिखना शुरू करो। डोंट स्पेंड टू मच टाइम जस्ट पॉन्डरिंग ओवर व्हाट शुड बी द सुटेबल हेडिंग और द टाइटल। बाय लाइन लिखी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखा, बाद में जाके टाइटल लिख लेना। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, और मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि कौन सी चीजों के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। टाइटल बहुत सुटेबल होना चाहिए और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी और कंक्लूजन पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिल्मों की स्टोरीज लिख के आइए, बट यस, बॉडी एंड कंक्लूजन कैन स्टिल गो, बट नॉट द इंट्रोडक्शन। So introduction, if it is not very good, then he deducts huge marks. But if the introduction is good and the title is good, body and conclusion should be good. I'm not saying they should be totally irrelevant, but he will comparatively spend lesser time on body and conclusion. Now, what sort of articles are often asked? Let us first of all look into one of the RTPs. जैसे इसने इंटरनेट वगैरह पे बोला हुआ है, मैं आपको और भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके ऊपर आपको काम करना होगा आर्टिकल राइटिंग के लिए। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए उसने लिखा हुआ है इंटरनेट इज अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन ह्यूमन लाइफ दीज डेज। ये पूरा का पूरा एक टाइटल नहीं बनता है, इसमें से टाइटल आपको निकालना पड़ेगा। तो एक तो इसने इंटरनेट के बारे में बता दिया। हमें लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा आर्टिकल है, लेकिन 200 से 250 वर्ड्स लिखने में टाइम लगता है, और रेलेवेंट होना चाहिए जो भी मटेरियल आप लिख रहे हैं। Materialistic things have gained more importance than emotional values। तो materialistic things versus emotional values के ऊपर भी उसने एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला है। अब मैं सिंपली इसके सजेस्टेड सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आरटीपी आपसे डिस्कस करना है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग समथिंग फ्रॉम माय साइड, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट ऑफ व्हाट ही हैज गिवन टू द एग्जामिनर, बिकॉज any examiner will look into the suggested solutions, only then he will mark your paper। अब देखिए उसने हिंट दिया हुआ है, ये सारा कोई आर्टिकल नहीं है। उसने बोला कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसका टाइटल होना चाहिए बून और बेन फॉर ह्यूमंस इंटरनेट। अब इसने यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं। सिंपली ये 4-5 लाइनें लिख के नहीं आनी है, ये 250 वर्ड्स पूरा नहीं करते। उसने बोला क्या क्या चीज होनी चाहिए, कि पेरेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं ओवर एक्सपोजर टू इंटरनेट, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में प्राइमरी फोकस स्टडीज पे होना चाहिए। इंटरनेट इज अ टूल, वन मस्ट यूज इट जुडिशियसली, अ गुड वे ऑफ एनहांसिंग नॉलेज रादर देन टेकिंग इट एज एन एडिक्शन। तो यहाँ तक तो वो पॉजिटिव बता रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुड बी यूज फॉर इन्फॉर्मिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड लर्निंग।
Once it becomes an addiction, it takes the form of distraction. Wise use is recommended. तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं. इसका मतलब एन एग्जामिनर विल लुक इनटू कि भाई क्या इसने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या इसने पॉजिटिव्स लिखे हुए हैं, क्या इसने ये बोला कि इंटरनेट को एज अ टूल यूज़ करो, क्या इसने लिखा है कि अब स्टूडेंट लाइफ में प्राइमरी फोकस किस पे होना चाहिए, जब ये एडिक्शन बनता है तो क्या होता है. तो these are the various hints that an examiner will look into, and he will try to see whether these points or similar points are there in your article as well. If your article is going too way too different from what these hints are saying, he will not allot you the sufficient number of marks. So you have to be very sure कि ये topic के बारे में एक एग्जामिनर क्या सोचता होगा, एक इसके कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके दिमाग में क्या आएगा जब आपका पेपर चेक करेगा. आप लिख रहे हैं इंटरनेट, आप सिर्फ सिर्फ सोशल मीडिया एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी इरिटेट हो जाएगा, कहेगा कि इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है. तो सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट. क्या आपने कुछ भी पॉजिटिव ही नहीं लिखा इंटरनेट के बारे में, सिर्फ ये लिख के आ गए कि सोशल मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन. पीपल नाउअडेज इवन इफ दे हैव टू टेक अ मील दे क्लिक अ फोटोग्राफ एंड पुट इट ओवर द इंटरनेट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ऐसा करके लिख के आ गए, तो उसके दिमाग में आएगा कि भाई इसका ना जो सोच है वो सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स तक है, तो सीधा 1.5 या 2 नंबर देके आपको आगे रफा दफा करेगा. तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कभी भी कोई भी चीज़ आपको एज एन आर्टिकल लिखना है तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन कंक्लूजन उसने बता दिया, वाइज यूज इज रिकमेंडेड. और एक चीज उसने क्वेश्चन भी दे दी कि अगर ये एडिक्शन बन गया तो इसको हम डिस्ट्रैक्शन का नाम देंगे. सिमिलरली उसने जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स था उसके बारे में क्या बताया, मनी और इमोशंस व्हाट मैटर्स मोस्ट, ये उसका टाइटल रख दिया. मनी इज लाइक अ बबल, इट कम्स एंड गोज. वन शुड वर्क हार्ड इन लाइफ फॉर इनर हैप्पीनेस. Materialistic things can be bought, they do not remain with us forever. Emotions build relationships which last longer. Family bonding, friendship, all this is dependent on emotions, not money or status. In the fast paced world where everything is getting artificial, getting a true friend, a supporting family, and a passionate mentor is what is most precious. उसने लिखा स्टूडेंट में राइट अदर रेलेवेंट पॉइंट्स अबव मेंशन्ड आर हिंट्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन एक एग्जामिनर के लिए उसने बता दिया कि भाई इस तरह की चीजें हैं, ऐसा कुछ लिख रहा है तो ठीक है, इससे मिलता जुलता कुछ लिख रहा है तो भी ठीक है, अगर उसका कोई व्यू पॉइंट है जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन रेलेवेंट है तो मार्क्स दे देना, वरना नहीं. आप बिल्कुल इररेलेवेंट लिख के नहीं आ सकते. तो आर्टिकल राइटिंग एक ऐसी चीज है, प्रिसाइज राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको रेलेवेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब मैं इसके बारे में आपको एक चीज और बोलता हूँ. एक तो इसने इंटरनेट के बारे में इस बार बताया आपको, दूसरा इसने मटेरियलिज्म के बारे में आपको बताया. इसके अलावा जो कोरोना है ये सब है वो इस बार नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने 2020 से लेके 22 तक उसी के ही प्रिसाइज राइटिंग, उसी का आर्टिकल वगैरह पूछा. आपको कुछ चीजों के बारे में, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, टीम वर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ चीजें और जैसे कि जो लेटेस्ट चीजें हैपनिंग्स होती हैं, जैसे इजराइल वाला, कोई भी ऐसी कोई सोशल प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स से कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों पे ज़रूर पढ़ के जाना, ये उसका एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है कई बार. ठीक है, एक टीम वर्क स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक आर्टिकल राइटिंग के लिए. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है. एक मिनट में इसमें भी डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में. जब भी आप किसी भी आर्टिकल को लिखते हैं तो मेरे हिसाब से कभी भी अंडरलाइन मत करिए ICAI के पेपर में. रीज़न ये है कि एग्जामिनर का ध्यान आपके बाकी पॉइंट्स पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ ये देखेगा अच्छा इसने ये पॉइंट कवर किया है, भले ही आपने कोई और पॉइंट्स भी कवर किए हों तो ही विल नॉट बी एबल टू टेक दोज इनटू अकाउंट.
So do not spend time in highlighting your points. I will suggest that you highlight the content in such a way by writing only the relevant points. That will itself highlight. Plus, it is 200 to 250 words. It's not too lengthy that he will not be able to look into those points. Create separate paragraphs for different points. इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना. मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा, let us say if I'm just talking about from an examiner's point of view, if let's say if a student has highlighted certain points, my focus will be only on those highlighted points. I will not even consider to read the remaining part, so which could otherwise be more meaningful and relevant. So don't do that, I think. Next in line is report writing. There are three types of reports in your examination. I will just do it like this. First part is newspaper report and magazine report. ये एक ही कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ इन दोनों को. और जो सेकंड कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं फॉर्मल या ऑफिशियल रिपोर्ट्स. अब whenever you are preparing your paper, न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट्स बहुत बार आता है, लेकिन फॉर्मल या ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी आ जाता है. ऑल्दो ज़्यादा टाइम वो न्यूज़पेपर मैगजीन बोलता है, लेकिन लेट अस से इफ यू आर स्पेंडिंग 1/3 ऑफ योर टाइम of preparation on newspaper and magazine and 2/3 of your time on formal and official reports, that will make a better sense to do. The reason is newspaper and magazine reports are comparatively simple to write, whereas you have to think, and these formal or official reports require more time to write and understand. So spend, let's say if you have to spend 3 hours on this chapter roughly, so 1 hour should be spent on newspaper and magazine reports and 2 hours should be spent on official या formal reports. Now let us go by what their formats are. अगर आप यहाँ से देखें तो न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट्स का फॉर्मेट सेम है, एक्सेप्ट इसमें भी टाइटल हेडलाइन है, इसमें टाइटल या हेडिंग है, इसमें भी बाय लाइन है, इसमें भी बाय लाइन है, इसमें भी बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है, इसमें भी बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है. सिर्फ प्लेस और डेट न्यूज़पेपर रिपोर्ट में होती है, मैगजीन रिपोर्ट में नहीं होती है, क्योंकि मैगजीन फोर्टनाइटली, मंथली, एनुअली कुछ इस तरीके से छपता है. तो हर चीज़ की उसने डेट लिखनी मैगजीन रिपोर्ट्स में ज़रूरी नहीं समझी है, whereas these are required in a newspaper report. So if you just simple वे में अगर आप अंडरस्टैंड करें तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या होगा, इसके अंदर एक टाइटल होगा जिसको हम हेडिंग बोलने की जगह हेडलाइन बोलते हैं न्यूज़पेपर में, और हेडिंग बोलते हैं मैगजीन में. पहली चीज़. दूसरी चीज़ है बाय लाइन, जो कि कॉमन है, किसने लिखा है ये आर्टिकल या रिपोर्ट. तीसरा है न्यूज़पेपर के केस में प्लेस या डेट. डेट हमेशा इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि जो मेन न्यूज़पेपर की जहाँ पे टाइटल होता है या न्यूज़पेपर का नाम लिखा जाता है उसी के ऊपर डेट लिखी जाती है, तो हर बार डेट को न्यूज़पेपर रिपोर्ट में डालने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड लास्ट थिंग इज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. अब मैगजीन रिपोर्ट में क्या क्या होगा, हेडिंग तो होगा, बाय भी होगा, ये चीज़ नहीं होगी, और बॉडी होगी. तो प्लेस एंड डेट सिर्फ किस में आएगी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, एंड इट विल नॉट बी देयर इन द मैगजीन, सॉरी या मैगजीन रिपोर्ट. अब हम पहले आरटीपी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसने आरटीपी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस क्या इसने पूछे हुए हैं या नहीं. So I'm just going back to the questions for report writing and let's see what sort of report writing is he asking you in this paper. उसने बोला newspaper report about a classical dance event organized by an NGO that works towards the cause of women empowerment. अब इसने बोला न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट सोचते ही आपके पास आना चाहिए, एक तो हेडलाइन होगी, बाय लाइन होगी, डेट प्लेस, अगर होगा डेट होगा या नहीं होगा बट प्लेस होगा, एंड फिर बॉडी. तो हम इसके एक सॉल्यूशन को चेक करते हैं जो इसने सजेस्टेड सॉल्यूशन में दिया हुआ है.
इसने लिखा न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग टाइमलाइन नेम ऑफ द रिपोर्टर हेडिंग ये सब होना चाहिए। इसने हिंट ही दिए हुए, इसने पूरी रिपोर्ट नहीं लिखे दी हुई। उसने बोला ये जो एनजीओ है उसका नाम क्या था जिसने डांस इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, डेट टाइम डिटेल्स, थोड़ा सा एनजीओ के बारे में कि वो किस चीज के बारे में काम कर रहा है। इट इज वर्किंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट। अचीवमेंट्स ऑफ एनजीओ टुवर्ड्स इट्स कॉज कि एनजीओ ने क्या अचीव किया था। इसके लिए कैंपेन, हु इनॉग्रेटेड, हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई डांस इज बीइंग प्रमोटेड, कैन मेंशन नेम्स ऑफ few dignitaries who attended the event, a few lines about why dance is being used as a form to promote expression and freedom of thought। तो इसने आपको एक हिंट दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। उसने बोला कि पहले तो वो टाइमलाइन वगैरह हेडिंग दो, उसके बाद कौन से एनजीओ ने किया, कहाँ पे हुआ, एनजीओ करता क्या है, उसकी आज तक की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, कैंपेन उसने ये बोला कि कौन आया, कौन चीफ गेस्ट था, ये वो, और एक मतलब एक न्यूट्रल सी लाइन की डांस को क्यों यूज किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर के लिए एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी होती है। अब हम आते हैं दूसरी तरह की रिपोर्ट जिसको हम फॉर्मल रिपोर्ट या ऑफिशियल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट अस से ये ऑफिशियल रिपोर्ट या फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है और इसको कैसे लिखा जाता है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है इसके अंदर बीसीआर की बुक के अंदर आईसीएआई ने दो फॉर्मेट्स दिए हैं, फॉर्मेट 1 एंड फॉर्मेट 2। ये दोनों फॉर्मेट्स के जो पॉइंट्स हैं वो आपको ढंग से पढ़ने होंगे। इस रिपोर्ट का एक हेडिंग होगा, ये रिपोर्ट किसको भेजी जा रही है, कौन भेज रहा है, किस दिन को ये रिपोर्ट बनाई गई, इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम एक ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो वो रिपोर्ट का एक हेडिंग होना चाहिए कि रिपोर्ट किस बारे में है, किसने बनाई, किसके लिए बनाई, या किसको सबमिट की, किसने सबमिट की, टू एंड फ्रॉम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए उस रिपोर्ट की, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स दैट subject should be different from heading. What are you talking about in this report? Introduction, give details of the task and reasons for it. आपने ये रिपोर्ट बनाने के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन या रिसोर्स यूज किया, कौन कौन से काम किए, कंक्लूजन, इवैल्यूएशन एंड सजेशंस। तो इसका मतलब कि आपको कैसे आपने काम किया उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, उसके क्या रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स आए, और आपके अपने सजेशंस जरूर होने चाहिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर कि मेरे हिसाब से ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स should be there as part of your evaluation या suggestion. Similarly, the format 2 that he has given, you will start saying 2 from तो आएगा ही आएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये तब होएगा जब आपकी रिपोर्ट कैन रन इनटू सेवरल पेजेस। समरी देंगे आप उसकी, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, बिब्लियोग्राफी। तो अगर आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स दोनों फॉर्मेट्स में सिमिलर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जिसके अंदर कंक्लूजन्स, फाइंडिंग्स, बिब्लियोग्राफी, रिकमेंडेशंस, बिब्लियोग्राफी तो नहीं बोलूंगा, रिकमेंडेशंस, ये सारी कॉमन चीजें आ रही हैं दोनों फॉर्मेट्स में। अब आता है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने ये तो पढ़ लिया कि ये चीजें उसने दोनों फॉर्मेट्स में दी हुई हैं। अब पहले हम इसका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं आरटीपी का और ये देखते हैं कि इसने दोनों चीजों को कैसे कंबाइन किया है। आप एक अकाउंट्स हेड है फास्ट ग्रोइंग होटल चेन के, आपको एक फॉर्मल रिपोर्ट लिखनी है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स मेड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टुवर्ड्स परचेज ऑफ इन्वेंट्री, हायरिंग स्टाफ एंड ओपनिंग ऑफ न्यू आउटलेट्स इन डिफरेंट सिटीज। इसका मतलब आप एक होटल चेन के मैनेजर हैं, अकाउंट्स हेड हैं, आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हिसाब से एक फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हैं। आपने कौन सा खर्चा किया पिछले साल में इन्वेंट्री के ऊपर। एक रेस्टोरेंट है तो उसमें इन्वेंट्री, टेबल्स, चेयर्स, यूटेंसिल्स होंगे। हायरिंग स्टाफ के लिए कितना खर्चा किया, और नए आउटलेट्स अलग अलग सिटीज में कहाँ पे ओपन किए तो उसके लिए क्या खर्चा किया।
देखने में ये बड़ा सिंपल लगता है कि बड़ा सिंपल होगा, इसमें क्या ही इतना मुश्किल होगा, बट वेंस यू लुक इनटू या अब ये इसने, हम यहाँ पे आते हैं, ये सारा खर्चे के बारे में कौन लिख रहा है? हेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्योंकि फ्रॉम में आएगा कि यू आर द हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। किसको लिख रहा है? डायरेक्टर अकाउंट्स को। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है फॉर्मल रिपोर्ट का, ये टोटली डिफरेंट हो जाता है न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट से। इसके अंदर वो फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका मिक्सचर करके इसने यहाँ पे दिया होगा। इसने लिखा कि ये कब भेजी जा रही है, डेट, सब्जेक्ट एक्सपेंडिचर मेड टुवर्ड्स इन्वेंटरी, हायरिंग स्टाफ एंड ओपनिंग ऑफ न्यू आउटलेट्स। इसके लिए किसकी एक्नॉलेजमेंट है, कंटेंट्स क्या हैं, समरी क्या है, यहाँ तक उसने इसको कंप्लीट किया। तो ये सारी चीजें समरी के अंदर, कंक्लूजन भी आएगा, कैन बी कंटिन्यूड फॉर, ये सारा कंक्लूजन एंड देन द कंक्लूजन। तो ये सारे पॉइंट्स उसने लिख दिए। मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ, ये वाला जो इसने आंसर आरटीपी में दिया हुआ है, ये सिर्फ एक हिंट आंसर है, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। इसके अंदर रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन्स, ये सारा कुछ आप अलग अलग हेडिंग्स डाल के भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन लिख रहे हैं तो यहाँ पे कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना, लिखिए। रिकमेंडेशन है, लिखिए। तो इस तरीके से मैं तो सिंपली एक चीज बोलूंगा कि जो फॉर्मेट 1 और 2 है, इन दोनों में से बेस्ट पॉइंट्स चुनो। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें डालने हैं। तो ये सारी चीज, ये सारा होमवर्क आपको पहले से करके रखना होगा। वहां पे जाके रन टाइम पे डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई मैंने इसमें क्या क्या चीजें लिखनी थी। तो आपके पास 7-8 हेडिंग्स ऑलरेडी फिक्स होने चाहिए कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेरे को लिखने होते हैं। तो ये कंपैरेटिवली इतना मुश्किल राइटिंग सेक्शन का पार्ट नहीं है अभी तक का। मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि जो नोट मेकिंग है वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसी के अंदर हमें पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, हमें सब हेडिंग बनाने होते हैं, तो वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब तक के सारे राइटिंग सेक्शंस उसके अलावा बाकी सारे सिंपल हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिपोर्ट राइटिंग तो यू कैन आस्क मी। और इफ इट इज क्लियर जस्ट कंफर्म मी। तो फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 में से हम कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं ना? आप फॉर्मेट 1 और 2 में से कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सजेशन ये था कि आप 1 एंड 2 में से जो बेस्ट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो दोनों पिक करिए। जो वर्ड्स या हेडिंग्स आपको बेस्ट लग रहे हैं, जैसे अगर मेरे को कंक्लूजन लिखना है तो वर्ड कंक्लूजन यूज होगा। मेरे को अपनी सजेशंस लिखनी है, मेरे को सजेशंस की जगह वर्ड चाहिए रिकमेंडेशंस, तो मैं रिकमेंडेशंस लिखूंगा। तो ये दोनों चीजें मैं अलग अलग फॉर्मेट्स में से उठा रहा हूँ कि फॉर्मेट 1 में मुझे सबसे अच्छे टाइटल्स या सब हेडिंग्स क्या लगे और फॉर्मेट 2 में क्या लगे, और मैंने उन दोनों को कंबाइन कर देना है। वैसे तो उसने क्या बोला कि फॉर्मेट 1 भी ठीक है 2 भी ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इन दोनों में से बेस्ट पॉइंट्स चुन के आप लिखिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, someone is asking which format is better for attempting an official report. So I just answered that question that um, as ICAI has given two formats, my suggestion is to combine the headings from both the formats, the best suitable headings, which according to you are the best. The next chapter is chapter number 10. It's a very important chapter actually, because there are two parts to this chapter. One is official letters and the other one is official communication. दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये देखिए पार्ट 1 में सिर्फ फॉर्मल लेटर्स आ रही हैं, और अगर मैं आपका पार्ट 2 ओपन करता हूँ तो इसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ रहा है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स अच्छे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर्स पार्ट 1 में आते हैं। ऑफ कोर्स
फॉर्मल लेटर्स लिखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर पहले सेंडर का एड्रेस, डेट, फिर एड्रेसी जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कंटेंट जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसमें आप लिखते हैं यूअर्स ट्रूली, ये इसको बोलते हैं वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, एंड देन डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर। आप आपने अपना नाम लिख दिया, नीचे सिग्नेचर लाइन आएगी जिसके अंदर आप लिखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब। ये सिंपल सा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, एंड आई थिंक यू हैव बीन फॉलोइंग दैट टिल 12th एज वेल। बट द थिंग इज, in this chapter what you should concentrate on, जहां से ये स्टार्ट होता है ICAI मॉड्यूल में 10.5 पेज पे, कौन सी तरह की बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स होती हैं। तो सबसे पहले होती है लेटर ऑफ इंक्वायरी। अगर आप किसी से कुछ खरीदना चाहते हैं और आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो कैसी लेटर होगी। सेकंड है ऑर्डर लेटर। जब आप किसी सेलर को एक ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मेरे को ये वाली सारी चीजें इस डेट तक इस हालत में भेज देना। थर्ड है लेटर ऑफ कंप्लेंट, जो कि बायर सेलर को लिखता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट। फिर है लेटर टू रिप्लाई, सॉरी रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये कौन लिखेगा, जो सेलर है बायर को लिखेगा कि मुझे इस कंप्लेंट लेटर जो तुमने भेजी है उसका क्या करना है, what can I do and do I agree to your points or not. Promotion letter means whenever you are doing some marketing, तो आप प्रमोट करने के लिए किसी चीज को, कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए एक प्रमोशन लेटर लिखते हैं। प्रमोशन लेटर ये नहीं है कि आप किसी की प्रमोशन हो रही है तो उसके लिए लेटर लिख रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड को, किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई प्रमोशन लेटर लिखते हैं। सेल्स लेटर का मतलब है जब बायर ने सेलर से कुछ ऑर्डर प्लेस कर दिया तो सेलर विल सेंड अ सेल्स लेटर थैंकिंग द कस्टमर दैट यू हैव परचेज्ड द प्रोडक्ट। रिकवरी लेटर्स आप समझते हैं कि किसी ने आपका लोन नहीं दिया और आपने पैसा रिकवर करना है, तो उसके लिए आप उसको एक थोड़ा सा असर्टिव या थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा यू कैन से डराने वाला लेटर लिखना है, तो दैट इज रिकवरी लेटर। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये सारी तरह की कौन सी लेटर्स हैं ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। फिर इसमें सैंपल लेटर्स दिए हुए हैं, इंक्वायरी लेटर है, सारी तरह के लेटर्स जितने भी हमने पढ़ी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें से कुछ के इसने कुछ सजेस्टेड एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं। तो ये करना कि किस तरह की लेटर्स होती हैं ऑफिशियल लेटर्स, और उनमें से क्या कंटेंट आपने यूज करना है, ये पढ़ना इटसेल्फ जरूरी है। तो ऑफिशियल लेटर्स का फॉर्मेट सिंपल है, बट आपने क्या इस पे करना है, कंटेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स। डोंट स्पेंड टू मच टाइम जस्ट ऑन द फॉर्मेट, कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। ये अगर इसने 10 12 13 इस तरीके के बनाए हुए हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, प्रमोशन लेटर भी है, सेल्स लेटर भी है, तो उन्हीं में से क्वेश्चन वो ऑफिशियल लेटर में पूछ सकता है। मतलब ये लिस्ट एग्जॉस्टिव तो नहीं है लेकिन काफी हद तक इन चीजों को कवर कर लेती है। I'm just coming over to the RTP to explain you. उसने लिखा on behalf of your private firm, sorry, formal letters. You manage the stationery supply in a privately owned library. Write a letter to the stationery vendor complaining about. तो ये complaint letter आ गई. Providing regular requirements, ask him to rate if possible. ये inquiry letter आ गई. Open a coffee shop, write a letter to this, giving the order. तो ये order place करने के लिए letter आ गई. तो अगर आप देखेंगे RTP में वही सारे points हैं
वही सारी चीजें हैं जो आपको ICAI मॉड्यूल में जो अलग अलग तरह की फॉर्मल रिपोर्ट्स सॉरी लेटर्स दिख रही थी। तो ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं ये कंपैरेटिवली सिंपल हो जाती हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 2 ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, जिसके अंदर दो चीजें हैं। एक है सर्कुलर, दूसरा है मेमो। आपने सिर्फ इन दोनों चीजों पे ध्यान देना है, दो ही चीजें हैं इसमें। सबसे पहले है सर्कुलर। जब आपने एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी सभी तक पहुंचानी हो या किसी टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचानी हो तो सर्कुलर काम आते हैं। सर्कुलर में सर्कुलर का नंबर होना जरूरी है, अदरवाइज इतने ज्यादा सर्कुलर्स जो इशू होते हैं अगर उनको ट्रैक नहीं किया जाए तो इट बिकम्स यूजलेस। So you have to have a circular number in the first place, a suitable title, the date, and then for whom it is concerned with। जैसे सभी एम्प्लॉयज के लिए ये वर्किंग आवर्स होंगे, डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा, ऐसे ऐसे करके। अब इसके बाद आपका नाम, डेजिग्नेशन। तो सिंस this is just like any circular, so you have to first of all, what are the various things, kindly revise। सर्कुलर का नंबर होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, किसको एड्रेस किया गया है, फॉर ऑल एम्प्लॉयज। उसके बाद उसका कंटेंट, फिर डिफॉल्टर्स विल बी लायबल, ये सब, और फिर है आपका नाम, डेजिग्नेशन। तो ये था सर्कुलर, सर्कुलर कैसे लिखना है। अब आ जाते हैं मेमो। मेमो जनरली लिखी जाती है, किसी बंदे को कोई काम दिया था लेकिन वो कर नहीं रहा, हम उसको एक रिमाइंडर भेज देते हैं। हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स, recount, keep a record, inform or strictly inform or instruct briefly। तो ये सारे उसने बता दिए कि कौन कौन से फंक्शंस एक मेमो में होते हैं, लेकिन आपने सिंपली एक ध्यान रखना है कि सर्कुलर कम्स फर्स्ट, मेमो कम्स लेटर। इसका मतलब मेमो का एक रेफरेंस पॉइंट होगा जो एक सर्कुलर भी हो सकता है, जो एक मेमो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि मेमो अलग चीज है, सर्कुलर अलग चीज है, दोनों को कभी भी मिक्स होके नहीं देखना। अब आपको सिंपली एक हिंट देता हूं। मेमो, सर्कुलर आपको समझ में आ गया क्या होता है, और दूसरी तरफ है इनका ऑफिशियल लेटर्स। अगर आप RTP देखें तो तीनों ऑफिशियल लेटर्स आई हुई है। मेमो और सर्कुलर का कोई क्वेश्चन RTP में नहीं दिया हुआ, लिखा इसने ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, लेकिन कहीं पे भी इस चैप्टर नंबर 10 के RTP के अंदर he has not asked anything regarding memo and circular। So my suggestion is spend more time on the letters and lesser time on the memos and circulars just to cover the risk। अब हम आ रहे हैं, जब आप किसी मेमो को लिखते हैं तो क्या ध्यान में रखना है। आपका एड्रेस किसके बारे में है, ये मेमो कब लिखी गई, किसने किसको लिखी, और इसका रेफरेंस होना जरूरी है। अगर आप पहली बार कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसको मेमो नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले आप कुछ बोल चुके हैं, कह चुके हैं, या किसी कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को यूज कर चुके हैं। तो रेफरेंस देना जरूरी है, सब्जेक्ट, एंड देन whatever you can call, this is what the body of the memo is। तो इसका मतलब इस किस दिन लिखा जा रहा है, किसने किसको भेजा ये मेमो, और ये है क्या। सिंपली ये चीज लिख के हम इस सॉल्यूशन को, इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं।
Is it fine with everyone? Okay. Sorry, one question. What else can be written in place of inter-office memo? Let us say हमने यहाँ पे ये वर्ड लिखा देखा था. I think I've closed it. यहाँ पे वो लिख रहा था इंटर ऑफिस मेमो. तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंटर ऑफिस मेमो के अलावा क्या कुछ यूज हो सकता है. ये हमें एक बार क्वेश्चन किसी तरह का देखना पड़ेगा जिसके अंदर वो इंटर ऑफिस मेमो की जगह लेट अस से एक रिमाइंडर कुछ भेज रहा है, तो हमें सिर्फ सिंपली इंटर ऑफिस मेमो वैसे वर्ड याद रखो कि अगर रिमाइंडर भेजना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक डिपार्टमेंट दूसरे को भेजेगा. विद इन द सेम डिपार्टमेंट रिमाइंडर्स नहीं भेजे जाएंगे थ्रू अ मेमो. इसके अलावा आप इसको इंटर ऑफिस मेमो की जगह कुछ भी और सुटेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि किस तरीके का पूछा गया है. मतलब एज सच हम our next chapter in writing is writing formal mails. now formal mails के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे और इसका क्या फॉर्मेट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. whenever you are in doubt, just open your email and you will be able to see how exactly do you write an email. So let us say if you simply go to, I'm not sure, yeah, this is, so if you start composing an email, any Gmail or something, you will come to know that these are the various things that are there in the mail. So यही चीज़ें आपका फॉर्मेट है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसने टू से स्टार्ट ना करते हुए फ्रॉम लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू विल बी सेंडिंग तो यहाँ पे ऊपर फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, वही चीज लिख रहा है, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट. यहाँ तक तो हमें समझ में आता है. फ्रॉम का मतलब सेंडर का ईमेल, टू का मतलब रिसीवर का. आपने किसी को कार्बन कॉपी में रखना है सीसीसी, ब्लैंक कार्बन कॉपी में रखना है बीसीसी. उसके बाद सब्जेक्ट देना जरूरी है, टाइटल और रीजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो जब भी आपने ईमेल लिखनी है तो ये वर्ड जरूर लिखने हैं, टू, फ्रॉम, ऐसे करके. अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं. अगर आप ये ईमेल एक ग्रुप को लिख रहे हैं या एचआर मैनेजर को लिख रहे हैं, टू, लेट अस से एचआर मैनेजर ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में जरूर लिख दो ईमेल आईडी ऐसे करके. don't start writing HR manager @gmail. So don't write like that. Just say HR manager email ID. अब आप यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है कि आप email ID सही लिख रहे हैं. तो आपको सिर्फ एग्जामिनर को एक हिंट देना है कि हमने HR मैनेजर की ईमेल आईडी पे ये भेजनी है मेल. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब है कि डियर व्हाट. सो डियर इज नॉट समथिंग which is informal nowadays. So dear sir can be used even in official and formal emails. So that is not an issue in writing this word called dear. Your main body and closing should be comprised of 2-3 paragraphs which will cover, or which will just give the hint for the email. It will also give the closing using recommendations and suggestions, which means that main body और closing बहुत effective होनी चाहिए. दो चीजें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसने फॉर्मेट में अटैचमेंट्स और सिग्नेचर लाइन दिया हुआ है. इवन इफ यू आर नॉट अटैचिंग एनीथिंग, लाइक here there is a purpose of attachment that you can attach anything from here, right? but आपको सिर्फ वर्ड वहां पे एग्जामिनेशन में अटैचमेंट्स लिखना है. इवन इफ द अटैचमेंट्स आर नॉट देयर, ऐसे करके लिख देना, छोड़ देना खाली, या नील लिख देना कि कोई अटैचमेंट नहीं है इसके साथ, लेकिन ये वर्ड जरूर लिख के आना.
और फिर एंड में क्या लिखता है वो सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन वर्ड नहीं यूज होगा, आपका पूरा सिग्नेचर यूज होगा। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं तो सिंसियरली ये सारा सिग्नेचर लाइन है, उसमें आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, कहाँ काम करते हैं, और अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है अलग से तो अगर हम फॉर्मल ईमेल की बात करें तो हमारा एक बार फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, क्लोजिंग, अटैचमेंट्स एंड सिग्नेचर लाइन। अटैचमेंट्स एंड सिग्नेचर लाइन ध्यान से रखना, बाकी मेन बॉडी, क्लोजिंग, सैल्यूटेशन ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब हम सिंपली इसी के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। उसने बोला on behalf of your private firm write a formal mail to all your employees। अब all your employees है तो to में क्या आएगा, ऐसे लिखिए all employees, ब्रैकेट में लिख दीजिए email IDs। all employees at gmail.com मत लिख देना, इस तरीके से लिखना। उसके बाद है रिक्वेस्टिंग देम टू कॉपरेट फॉर द लिमिटेड पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल इन द ऑफिस बिल्डिंग। इसका मतलब ऑफिस बिल्डिंग के अंदर लिमिटेड पार्किंग स्लॉट्स है, उसमें कॉपरेट करने के लिए बोला गया है। State a few solutions possible and mention how the organization is being considerate towards the employee। इसका मतलब कि how the organization is being considerate and few solutions also, कि हमारे पास limited parking slots हैं लेकिन आप कैसे कर सकते हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। मैं एक सजेशन वैसे ही दिमाग में आ रहा है, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यू शुड like 3 or 4 employees are pooling in the car, something like this, so that limited parking slots which are available can be used। या आप ये कह सकते हैं कि अपने डेज फिक्स कर लो जिस दिन आप अपना व्हीकल लाने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। साइन योरसेल्फ एज अनीशा शर्मा, एचआर हेड, सिरेंडिपिटी सॉल्यूशंस गुरुग्राम। तो ये सब आपकी सिग्नेचर लाइन में यूज हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली आते हैं इसके एक सॉल्यूशन पे। वो देखिए, डियर एम्प्लॉइज ग्रीटिंग्स, parking rules of the organization, we are sharing the building with 3 other corporate firms, slots available is 45, parking is in the basement free of cost as on first come first service, due to limited slots unable to accommodate the vehicles of all employees, provision has been made in the nearby field to park cars who cannot get space in the basement. However, it will be on payment basis. For convenience, there are minimum charges of parking. Please carry your office identity cards to avail discount। तो इस तरीके से भी लिख सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मल ईमेल्स को लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ सिंपली इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। कुछ सजेशंस या सॉल्यूशंस जो आपके दिमाग में है वो ही आप उसमें इनकॉर्पोरेट करिए। अगर किसी का फॉर्मल ईमेल्स को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम रिज्यूमे राइटिंग को एक बार डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर और डू यू हैव क्वेश्चंस? ओके, विल डिस्कस रिज्यूमे राइटिंग। रिज्यूमे राइटिंग के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक है रिज्यूमे जो कि 3 तरह का है। पहला है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा है फंक्शनल और तीसरा है कॉम्बिनेशन। और इसके साथ एक है कवर लेटर। कवर लेटर कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मल लेटर की तरह है जो कि इसमें वो सारी चीजें हैं जो रिज्यूमे में नहीं होती हैं। मतलब रिज्यूमे में से कॉपी पेस्ट करके हम कवर लेटर में नहीं लिखेंगे। तो जो कवर लेटर है
उसमें क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस जॉब। आपको इस जॉब के लिए जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं कवर लेटर साथ में लगाना होता है रिज्यूमे के। कवर लेटर में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो रिज्यूमे में नहीं होती है। तो कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कवर लेटर इज अ पार्ट ऑफ द रिज्यूमे। तो कवर लेटर में सबसे पहले एक एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को बताना है। मैं इसको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी वो आपका एम्प्लॉयर बना नहीं है। आपको उस जॉब के बारे में कैसे पता चला, पहला पॉइंट जो आपने लिखना है। दूसरा पॉइंट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल। आपको इस जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या पता है कि इस जॉब प्रोफाइल में किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या काम होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। And fourth and the most important thing, how do you fit into the job? इसका मतलब what are the qualities that you specifically possess which make you a suitable candidate for this job? सबसे पहले आपको जॉब के बारे में कैसे पता चला, इस जॉब प्रोफाइल के बारे में आप क्या जानते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, और आप इस जॉब प्रोफाइल और इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सूटेबल बैठते हैं। These are the contents of a cover letter. अब आ जाते हैं कि रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। ऑल्दो इसने यहाँ पे 3 तरह का रिज्यूमे एक्सप्लेन किया है। क्रोनोलॉजिकल जिसमें सब कुछ सीक्वेंस में चलता है, फंक्शनल जहाँ पे आप स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि या तो आपके एक्सपीरियंस में या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहीं ना कहीं कोई गैप ईयर्स थे, उनको ना दिखाने के लिए आपका आप आप एम्प्लॉयर का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स में। बट अगर हम सम अप करें तो हमें रिज्यूमे में क्या क्या फॉर्मेट यूज करना है। सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल, मतलब आपका नाम और आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव, इसको हम करियर ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली बहुत अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। किसी भी रिज्यूमे में एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा ध्यान ऑब्जेक्टिव में जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अंदर सिंपली एक चीज़ अवॉइड करनी है, टू से तो स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि इसने भी किया हुआ है, टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। टू बी एसोसिएटेड विद तक तो ठीक है, कई लोग यूज करते हैं योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज बिल्कुल हर हालत में अवॉइड करनी है। टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, विद अ कंपनी ठीक है, विद अ फर्म ठीक है, बट नॉट ऑब्जेक्टिव आपका ये नहीं हो सकता कि मैं पैदा इसलिए हुआ था कि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकूं। तो नॉट लाइक दैट। सो to be associated with an organization is fine. To be associated with your organization will look like you are going to an interview with a begging bowl, which you should not. So this should be there. This objective should be very clear, very effective. Summary should be given. Summary के अंदर आप की पॉइंट्स लिख रहे हैं 4 या 5। इतने ज्यादा पॉइंट्स मत लिख देना समरी में कि ऐसा लगे कि रिज्यूमे से बड़ी समरी है। समरी में पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिंपली ये बताना होता है जैसे मोर देन 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, फ्लॉलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ऐसे करके। फिर आपने क्या करना है, पहले एक्सपीरियंस दिखाना है, फिर एजुकेशन दिखाना है, और एक्सपीरियंस में भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट। और एजुकेशन में आई विल सजेस्ट ऑलवेज गो विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन in a tabular form where you are using 4 or 5 columns: year, degree, institute or college, percentage of marks and division of marks, first division, second division, ऐसे करके। ये वाला तरीका जिसमें आप टेबुलर फॉर्म में अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन
जब आप एक्सपीरियंस लिखते हैं तो उसको टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल मत लिखिए। इसका मतलब जो आपने एक्सपीरियंस पहले लिखना है, एक्सपीरियंस आपको इलेबोरेट करना होता है, टेबुलर फॉर्म में मत लिखना। लेकिन क्वालिफिकेशन को आपने इलेबोरेट नहीं करना होता है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना। जैसे इसने लिखा हुआ एजुकेशन, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज दिस वे, बट यस द वे ही हैज रिटन एक्सपीरियंस इज बेस्ट, but don't write educational qualification in this way. Then you have to concentrate on skills. Skills are of two types. One is technical skills and other is personal skills. तो आप अगर तो आपको टेक्निकल स्किल्स उस जॉब से रिलेटेड कुछ अलग से लगते हैं तो अलग से हेडिंग बनाइए टेक्निकल स्किल्स। एंड सेकेंड इज पर्सनल स्किल्स, इस पे सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स, इसके अंदर मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस नोन, ये सब आएगा। फिर डिक्लेरेशन में सिर्फ और सिर्फ ये ही लाइन लिखनी है, अपने आप से डिक्लेरेशन मत बनाने बैठ जाना। डेट, प्लेस और नेम, ये तीन चीजें आएंगी। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी हमारे पास। सबसे पहले था आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, समरी, एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर स्किल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन, और एंड में डेट, प्लेस और नेम। इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी है, ये जरूर लिखना है। इसके अलावा दो तीन पॉइंट्स और हो सकते हैं, कौन से, एक बार हम अगले फॉर्मेट से देखते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव इज फाइन, टेक्निकल एंड पर्सनल स्किल्स इज फाइन। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का मतलब होता है जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, आपके बारे में क्या बोलते हैं, उनके लिए उनके रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। लेकिन आपने वहां पे डिटेल्स नहीं देनी है। रेफरेंसेस एक हेडिंग बनाइए और उसके ऊपर लिख दीजिए विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, या लिखिए विल बी अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, या सिंपली ये लिख दीजिए अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। डोंट स्टार्ट राइटिंग नेम्स एंड हु वाज ही, व्हेन वाज आई एसोसिएटेड, समथिंग लाइक दिस। डोंट डू दैट। रेफरेंसेस के साथ सिंपली इतना लिखिए। डिक्लेरेशन अगर आप देखेंगे सेम लाइन यूज करी हुई है जो पिछले फॉर्मेट में यूज करी हुई थी, डेट, प्लेस एंड नेम। तीसरा वाला फॉर्मेट भी देख लीजिए कॉम्बिनेशन रिज्यूमे का, उसमें भी सेम चीजें हैं, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, कंप्यूटर स्किल्स, रेफरेंसेस के लिए फिर से वही डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस, नेम। तो जब आपने रिज्यूमे राइटिंग के लिए प्रिपेयर करना है, और एक चीज का बहुत ध्यान रखना, you have to have a clarity about the cover letter as well। तो कवर लेटर भी ढंग से लिखनी है, लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना, अगर उसने कवर लेटर बोला तो सिर्फ कवर लेटर लिखो, और अगर उसने लिखा हुआ है सिंपली रिज्यूमे तो सिंपली रिज्यूमे लिखो, दोनों को मिक्स मत करो। until he writes clearly that cover letter and resume, तभी दोनों लिखो। अगर आप इस टाइम पे ये देख रहे हैं रिज्यूमे, रिज्यूमे, तो इस बार जो आरटीपी वाला है वो आपको क्या हिंट दे रहा है कि कवर लेटर के चांसेस कम है, लेकिन कई बार इनके हिंट ऑपोजिट भी होते हैं। तो मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि इतना कोई मुश्किल नहीं है कवर लेटर लिखना, रिज्यूमे के साथ साथ कवर लेटर को भी करके जाओ। ऑल्दो हिंट यही बोलता है कि रिज्यूमे का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कवर लेटर कोई इतनी खास मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ रिज्यूमेस, chronological, functional and combination, but pick up the best points from the three resume formats given in ICAI module. That means two three things, summary should be there, ठीक है, summary होनी चाहिए पहली बात। दूसरा, एक्सपीरियंस जो है वो कभी भी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना। तीसरा, क्वालिफिकेशन हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना। ये तीन पॉइंट्स तो ध्यान में रखना। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, रेफरेंसेस का एक जगह पे उसने यूज नहीं किया हुआ था, बाकी जगह पे यूज किया हुआ था, तो रेफरेंसेस लिखना ही लिखना है। डिक्लेरेशन क्लियरली वही लाइन होनी चाहिए जो इसने लिखी हुई है। उसके बाद डेट, प्लेस एंड नेम है, वो भी हमेशा होना चाहिए हर रिज्यूमे में। तो ये कॉमनैलिटीज हैं जिनमें जो चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा क्या था, जो स्किल्स थे वो लिखने हैं,
वो उसने ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ था फंक्शनल और कॉम्बिनेशन में एज कम्पेयर टू क्रोनोलॉजिकल, बट ठीक है, स्किल्स आप सभी जगह लिख दीजिए। तो समरी लिखिए, एक्सपीरियंस लिखिए, एक्सपीरियंस आपने इलेबोरेट करके लिखना है, क्वालिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में, स्किल्स को आपने अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन टेक्निकल एंड पर्सनल, वो कर दीजिए, नहीं करना तो एक ही जगह स्किल्स लिख दो। रेफरेंसेस जरूर लिखने हैं, डिक्लेरेशन अच्छे से लिखना है। और कवर लेटर में मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। अभी किसी का कोई भी डाउट है, solemnly मीन्स आई अंडरटेक टू, मतलब एक तरीके से ओथ, तो आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग इट, so that is what it is. So you have to use the exact same line. So any question from resume writing, anyone, if you face, kindly ask. Okay, anyone with any question on resume writing? No, sir. All right. So writing section के last part पे आ रहे हैं meetings. इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। Agenda of the meeting, minutes of the meeting, action taken report. सबसे पहले हम इसके आरटीपी के क्वेश्चन पे आते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस मिनट्स ऑफ मीटिंग पे हैं। मैं भी यही बोलूँगा, इस पे कंसंट्रेट करो, ज़्यादा टाइम इस पे लगाओ। लेट अस से half of the time you can spend here, 25% of the time here, and 25% of the time here. अब इसने क्या बोला है, इसने हमें एक हिंट दे दिया कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमने एजेंडा को छोड़ना नहीं है। एजेंडा को लिखने के लिए मैं आपको जो बेस्ट फॉर्मेट है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है मीटिंग इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर लिखना है ऑब्जेक्टिव, डेट, टाइम, लोकेशन। मतलब आपने कैसे लिखना है, ओके, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग और एक्शन टेकन रिपोर्ट होता क्या है, ताकि आपको इजी लगे। एजेंडा होता है मीटिंग से पहले भेजा जाता है कि इस मीटिंग में क्या होगा, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन एजेंडा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग होता है कि मीटिंग के अंदर व्हाट वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस्ड, दीज आर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इसका मतलब ये ड्यूरिंग द मीटिंग लिखे जाते हैं, ये प्रायर टू द मीटिंग लिखा जाता है, और एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है आफ्टर द मीटिंग इज कंक्लूडेड, कौन कौन सी चीजों पे क्या क्या एक्शंस हुए, दे आर कॉल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट। कि आपने कुछ चीजें डिसाइड करी थी मीटिंग में, उनका क्या हुआ आफ्टर 5-7 days, what is the status, that is action taken report. So this is prior to the meeting, this is during the meeting, and this is after the meeting. So एजेंडा जब आप पहले भेजेंगे तो क्लियर होना चाहिए बंदे को। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, मीटिंग की इंफॉर्मेशन, की मीटिंग जो होनी है वो कहाँ पे होनी है, तीन चार चीजें कहाँ पे होनी है इसने लिखा हुआ है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, डेट, टाइम, लोकेशन। यहां से करने के बाद सीधा आप टेबुलर फॉर्म पे आएंगे, मतलब इसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे। ये 4 पॉइंट्स कवर करने के बाद इसके 4 या 5 कॉलम्स बनाएंगे। इन कॉलम्स में क्या होगा, हर चीज के लिए आपने बताया कि इस टाइम पे ये टॉपिक डिस्कस होगा। अटेंडीज, स्पीकर, ड्यूरेशन। अगर आपके अटेंडीज जैसे इसमें है पार्टिसिपेंट सेम है, तो आप अटेंडीज को यहाँ पे ले जाइए, जहाँ पे लोकेशन लिखा है उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे, इसके बाद अटेंडीज ऑल एम्प्लॉयज। फिर यहाँ से अटेंडीज का कॉलम आप हटा सकते हैं, आप फिर सिर्फ 4 कॉलम रख सकते हैं, टाइम, टॉपिक, स्पीकर एंड ड्यूरेशन। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, बार बार आप अटेंडीज नहीं लिख सकते, या नहीं लिखना चाहिए अगर सेम अटेंडीज ने पूरी मीटिंग एक ही बार में करी है। इफ द अटेंडीज आर चेंजिंग, then you can start writing as a column, otherwise it's not required. अब जैसे इसने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, डिस्कसिंग अपकमिंग स्ट्रेटजीज, इस तरीके से उसने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कि ये चीज़ 15 मिनट चलेगी, ये चीज़ आधा घंटा चलेगी, ऐसे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।
जस्ट टुवर्ड्स द एंड एक ओपन हाउस का पॉइंट टॉपिक जरूर रख देना। ओपन हाउस होता है कि जब सबसे पूछा जाता है कि आपके कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, ओपन क्वेश्चंस। ओपन हाउस इज दैट anyone and everyone can ask, shoot up their questions. And last is thank you note. Thank you note is just ki when the meeting is being concluded, someone has to summarize and conclude the meeting and bring it to a logical end. This was the format of agenda. But as such, agenda is not being shown in RTP, but I would suggest that you spend some time looking into the agenda. What is the format? How an agenda should look like. Next is minutes of the meeting. Minutes of the meeting सबसे important है। Minutes of the meeting कैसे लिखे जाते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने लिखनी है वो है मिनट्स। इसमें सिंपली मिनट्स लिखा हुआ है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप क्या लिखेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऐसे करके आप एक हेडिंग बनाएंगे और ऐसे करके लिखेंगे लेट अस से एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड, ऐसे करके पूरा लिखेंगे कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, किस कंपनी के बारे में बात हो रही है। उसके बारे में लिखेंगे डेट कि किस दिन ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद लिखेंगे मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM, किस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हुई थी। आप इसको बुलेट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ABC करके भी लिख सकते हैं। यहां से डेट के ऊपर मत ABC लिखना, उसके बाद लिख देना मीटिंग स्टार्टेड एट दिस टाइम। कौन कौन प्रेजेंट था, पार्टिसिपेंट्स वर दिस, क्या क्या हुआ उस मीटिंग में ये बताना है आपने। ये चीज मैं आपको एज सच समराइज करके नहीं बता सकता क्योंकि हर क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स अलग होंगे। फिर आ जाएगा ये वाला लाइन आपने जरूर लिखनी है, चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड एन ओपन हाउस फॉर पार्टिसिपेंट्स टू पुट अप देयर कंसर्न्स एंड फाइनली गेव अ वोट ऑफ थैंक्स। ये आपने एजेंडा में भी देखा था कि वहां पे ओपन हाउस था और वहां पे वोट ऑफ थैंक्स भी था। तो ये लाइन आपने जरूर लिखनी है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, द चेयरपर्सन declared an open house for participants to put up their concerns and finally gave a vote of thanks. इसके बाद है कंक्लूजन्स स्टेटेड। कंक्लूजन स्टेटेड का मतलब है कि कौन से कंक्लूजन्स लिए गए, क्या क्या कंक्लूड हुआ उस मीटिंग में। ये वाले ATR टू बी सबमिटेड बाय 12 दिसंबर, ये सारी चीजें कंक्लूजन्स हुए। तो मेनली आपने एक चीज का ध्यान रखना है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, टुवर्ड्स द एंड एक तो ओपन हाउस वाला पॉइंट जरूर होना चाहिए, दूसरा आपने कौन से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स दिए और ATR कब सबमिट की जानी है इसके ऊपर भी आपने लिखना है। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन रहे थे 5 दिसंबर के और ATR सबमिट करनी है 12 दिसंबर को। तो इसका मतलब लगभग 7 डेज के आसपास का टाइम है बीच में। इतने टाइम गैप के बाद आपने लिखना है ATR, ये नहीं कि ATR विल बी सबमिटेड इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, सो इट विल नॉट सो हैपन। सो देयर शुड बी सम नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन, 5 to 7 डेज का गैप देके आप ATR का डेट लिखेंगे। अब क्योंकि हम अभी मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो लेट अस सी यहां पे उसने कैसे उसको लिखा है। दिस इज RTP, मिनट्स ऑफ द मीटिंग फॉर अ मीटिंग कंडक्टेड टू डिस्कस द विजिट प्लान ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स। फॉरेन क्लाइंट्स ने विजिट करना है, उनका मीटिंग प्लान डिस्कस करने के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग फॉर अ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड to discuss the increase in costing of FMCG goods, discuss the need to increase the price of the product is not selling well. अब let us say इन दोनों के लिए उसने क्या क्या चीजें करी हुई हैं। Mention the agenda and cause of the same, participants कौन थे, meeting started at this, ये सब। Concluded the meeting, vote of thanks, who attended the meeting. Similarly दूसरा वाला, participants कौन थे, date this, explain the agenda, brainstormed, everyone, meeting concluded with few ideas regarding this and everyone is ready to explore and implement. तो ये था आपका minutes of the meeting। अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो अगेन सिमिलर टू मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। आपने क्या लिखना है, एक्शन टेकन रिपोर्ट पूरा लिखना, ATR मत लिखना, फॉर मीटिंग
हेल्ड ऑन 5th दिसंबर ऐसे करके। अब एक्शन टेकन रिपोर्ट किस दिन है? 12th दिसंबर को डेट लिखना, फिर लिखना विद रेफरेंस टू या एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 5th दिसंबर फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड। हैव बीन टेकन मत लिखना, फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड। कौन कौन से एक्शंस? कम से कम एटीआर में 4 से 5 पॉइंट जरूर लिखना कि ये काम हो गए हैं, जैसे कि क्लाइंट ने ये कर दिया, क्लाइंट ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, जो भी है। उसके बाद है अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब ये जो एटीआर भेज रहा है ये है कौन? अंडरसाइंड में आप डेजिग्नेशन लिखेंगे, जैसे इस केस में 2 डेजिग्नेशंस हैं, एक है डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, दूसरा है डायरेक्टर बिजनेस। तो एटीआर कंपैरेटिवली सिंपल है। इसका फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा मिनट्स ऑफ द मीटिंग से मिलता है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वी हैव सीन दैट इन द आरटीपी एज वेल। एंड जो एजेंडा है वो प्रायर टू द मीटिंग भेजा जाएगा और वो भी बहुत कंपैरेटिवली इजी है। उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि 2 हिस्सों में आपने फॉर्मेट को डिवाइड करना है। पहला है मीटिंग इन्फॉर्मेशन और दूसरा है टेबुलर फॉर्म। जब आप टेबुलर फॉर्म में अटेंडीज को सेम रखना चाहते हैं तो आप इसको मीटिंग इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड कर दो और वो कॉलम ही गायब कर दो। तो अब ये थे हमारे राइटिंग सेक्शंस के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनका हमने एक रीकैप देखा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। फॉर्मेट्स किसी भी चीज़ के आपको पहले से प्री डिसाइडेड होने चाहिए। इसका मतलब अगर उसने बोला कि राइट अ रिज्यूमे, तो आपके दिमाग में रिज्यूमे का फॉर्मेट ऑलरेडी होना चाहिए। वहां पे रन टाइम पे इधर उधर देख के या सोच के कि मैंने ऐसा सोचा था, वैसा सोचा था, करियर ऑब्जेक्टिव ऐसा लिखना है। खास करके रिज्यूमे के अंदर करियर ऑब्जेक्टिव पहले से लिख के याद रख के कि मेरे को ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, आपके पास होना चाहिए। फॉर्मेट्स की तरफ जरूर ध्यान देना राइटिंग सेक्शन में। सेकंड चीज है सिंपल लैंग्वेज यूज करना। बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज या गलत वर्ड्स का इस्तेमाल मार्क्स की डिडक्शन के लिए इनविटेशन है। तीसरी चीज अपना टाइम मैनेज जरूर करना। आपके पास 40 मार्क्स हैं पीसीआर के पेपर के लिए और 60 मार्क्स हैं लॉ के पेपर के लिए। तो लगभग आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स का लगभग टाइम होगा बीसीआर कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते हैं जितना कि आप सोचने में टाइम लगा देते हैं और अल्टीमेटली आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। ये सभी की प्रॉब्लम आएगी अगर आप टाइम मैनेज ढंग से नहीं करोगे। तो आपको हर हालत में 1 आवर 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम बीसीआर को नहीं लगाना है। और फोर्थ पॉइंट है पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अगर उसने नहीं बोला कवर लेटर लिखने के लिए तो टाइम मत वेस्ट करना। कोई चीज बोली हुई है, अब जैसे प्रिसाइज राइटिंग है तो प्रिसाइज राइटिंग में वो अलग से नहीं बोलेगा, बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा फिर भी आपको समरी लिखनी है। नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। फिर मत बोलना कि वहां पे तुझे समरी लिखने के लिए बोला नहीं था। ये सारी चीज अंडरस्टूड है। और पांचवी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईसीएआई का मॉड्यूल फॉर्मेट्स के लिए जरूर देखना, क्योंकि आईसीएआई जो भी सजेस्टेड सॉल्यूशन बनाएगा वो अपने ही मॉड्यूल के फॉर्मेट्स से बनाएगा। तो जितने भी सजेस्टेड सॉल्यूशंस होंगे वही एग्जामिनर के पास होंगे और उनको एक बार जस्ट रीड करके कि अच्छा जी आईसीएआई ने ये सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया तो मुझे इन लाइंस पे चेक करना है, एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा। Just don't try to think it from your point of view. Also try to see what an examiner will expect out of you. So keep these few points in mind. It's not a difficult paper, but yes, it's going to be a lengthy paper if you do not manage your time properly. It's not going to be difficult, but yes, management appropriately is essential. अच्छा, एक बोल रहे हैं कि एजेंडा का फॉर्मेट दोबारा से। Okay, two parts, two things. Repeat the format of agenda. This I'll do. In minutes of meeting, what each speaker said is to be given. Minutes of the meeting is not about what every speaker is saying. Minutes of the meeting will say what are the important points. For example, I'll just little elaborate on this. जैसे इसने इंट्रोडक्शन दी, इसने प्रोडक्ट के बारे में बताया, मार्केट सर्वे के बारे में बताया,
पार्टिसिपेंट्स अप्रूव्ड एंड अप्रिशिएटेड शालिनीज रिपोर्ट। यहाँ पे किसी ने बोला नहीं है, ये चीजें पॉइंट हुई, ये डिस्कस हुआ, तो आपने ऐसा नहीं लिखना कि ये बंदे ने ये बोला, ये बंदे ने ये बोला। ये चीजें डिस्कस हुई, इस बंदे ने ये बोला, ये लिख सकते हैं, बट नॉट all the points should state that this person spoke on this person spoke on this. You have to just conclude what are the main points that you have to that have been discussed in the meeting. चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड एन ओपन हाउस, इसमें उसने बोला नहीं, डिक्लेयर्ड, तो ऐसे वर्ड्स यूज आपने करने हैं। सिमिलरली अगर हम एजेंडा की बात करें, एजेंडा का फॉर्मेट आप बोल रहे थे, सबसे पहले क्या करना है आपने, एक हेडिंग लिखना है मीटिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें ये 4 चीजें लिखनी है। मीटिंग इन्फॉर्मेशन लिखा, ये 4 चीजें लिखी, उसके बाद सीधा कोई हेडिंग नहीं, कुछ नहीं, 4 या 5 कॉलम्स वाला टेबुलर फॉर्म बनाया। उस टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये टॉपिक इस अटेंडी द्वारा अटेंड किया जाएगा, ये स्पीकर होगा और ड्यूरेशन क्या होगी टाइम की। तो यहाँ से आपने पहले उठाना है मीटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपने यहाँ से टेबुलर फॉर्म उठाना है। So is it clear? Any other question that you have, kindly shoot up right away. Any other question, anyone? Sir, it's related to the paper that Mhm. if we do the, is there any compulsory that we have to do law paper first and then PCR paper? No, that is not required. That's not required. You can attempt it either way. But my suggestion will be, which I have been always telling, that you should divide your time in such a way that the first 1.5 hour should be spent on law paper. Next 1 hour should be spent on BCR paper. Since you have exhausted 2.5 hours, the remaining half hour should be spent on law and BCR questions, whichever is left. But some people do it the other way around also. They first attempt 1 hour made BCR ka paper, which is very difficult to do because in the initial 1 hour, you will not be able to complete BCR because you will think more logically, you will think more on those lines, but you will end up spending more time on BCR and you would be left with, and then you will panic because law के अंदर आपको sections, case laws ये सारे भी डालने होते हैं। तो वो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता कि पहले आप बीसीआर करें और फिर आप लॉ करें। मैं आपको अदर वे राउंड जाने की बात करूंगा, पहले 1.5 घंटे में लॉ कंप्लीट करने की कोशिश करिए, फिर बीसीआर, और जहाँ पे लॉ का कुछ छूट गया तो वहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए, और वो हाफ आवर में जो लास्ट का बचता है उसमें उन सारी चीज़ों को फिलअप करिए जो बीसीआर और लॉ में रह गई हैं। बट यस, ये कहीं पे नहीं लिखा गया कि बीसीआर से पहले आपको लॉ का पेपर करना है। अगर if you are more inclined towards doing BCR first, do it in 1 hour and then 1.5 hour for law, and then towards the end whatever is left you can complete the fillers. You can do it that way. It's nowhere written that you have to first do law and then BCR. Any other question, anyone? All right. So I hope that this revises the format and you're able to get what the things were expected in VCR. That is why I discussed the RTP also. Do not miss to solve those RTPs, and especially 2-3 attempts के RTPs ज़रूर देख के जाना। कोई भी और दिक्कत लगे, you can always message me, you can ping me, and then we can discuss on those questions as well if you have any specific. So for today, I will just bring it to an end if you don't have any further questions. So thank you everyone. Thank you for joining. Just once again, I just wanted to stop presenting. ये कुछ और ही बन गया. Okay. So thank you everyone.